Be thankful for what you have, and you will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. With this thought, a very warm welcome to all of you in the grand finale of Spark Your Mind series, Season 1. तो आज के हमारे एपिसोड के साथ ही हमारे सीजन का ग्रैंड फिनाले भी है। तो और इसी ओकेजन और इसी एपिसोड के साथ मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई वांट थैंक यू फॉर शोइंग योर लव सपोर्ट एंड कि आपने हमारे वीडियोस को, हमारे एपिसोड्स को इतना लाइक किया कि वी हैव रीच 14K व्यूज on few episodes. Few videos are on 10K views. So thank you for your love and support. So आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपने कहते ना सुना तो होगा, बट आज हम जानेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चेंजेस ला सकता है ये हमारे लाइफ में, और किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं इस एक वर्ड से, दैट इज थैंक यू। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटिट्यूड। कि जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम उनके लिए थैंकफुल होके, ग्रेटफुल होके किस तरीके से अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ रही हैं। तो आइए देखते हैं a short intro about our today's guest. She is a certified parenting coach, author, and a motivational speaker with over 13 years of diversified professional experience in the area of HR, training, teaching, and coaching. She is also on a mission to support the cause of empowerment of underprivileged children and to inspire them intuitively to build a better world. Today she is a certified NLP practitioner, yoga practitioner, volunteer of many healing therapies, and the author of The Power of Gratitude. So please welcome our today's guest, Shiba Kumar. So, hello Shiba, how are you? I'm fine. How are you, Super Coach Sonu? So glad to meet you. I'm so excited to meet you, and you're doing such a fabulous job doing contribution to the society. It's truly amazing, and my best wishes to you and what on all your endeavors. Thank Yeah. you. I'm also good, as usual, doing new things and experimenting. No. It's absolutely amazing. What you're doing is absolutely amazing. The best service that we can do to the community is to contribute to the community, and you're doing an amazing job. Yeah. Thank Correct. you. So, first of all, I want to thank you that you have accepted my invitation and come to this series, Spark Your Mind. And as we are in the grand finale today and the last episode of this season, Okay. thank you No. for accepting. In fact, I am really thankful to you for providing me this platform. Thank you so much for this. Indeed, it's my pleasure, and I really appreciate you for that. So Shiba, as you are parenting coach and you have written a book, that Power of Gratitude. So what do you think? Okay. What is gratitude and why it is so important? Okay. Before I answer this question of yours, well, I would start with a beautiful quote by Nellie Wilson, which says, "When I started counting my blessings, the whole world turned around." And this holds true in my life. Well, life was beautiful for me until a tragedy struck, which cut me down in the prime of my life. And I was in deep depression, anxiety, and panic attacks when this gratitude practice completely changed me as a person. And it completely changed my perspective towards my life. So I was always complaining about why this has happened to me and all.
And just one visit to AIMS. I just wanted to brief you that something severe to do with the brain happened to me, and I didn't have a choice. In spite of constant follow-ups and constant visit to private doctors, it was not getting sorted out. Things could not be diagnosed, so I had to finally visit AIMS, and one visit to AIMS completely changed me as a person. There I saw the children, small little children, suffering from the same disease which I was suffering from, and I had an opportunity to talk to one of the parents, and what she mentioned, I have goosebumps. I cannot express the kind of agony that mother was going through, and she was so strong. And she told me that my 6-year-old child, I don't know whether he's going to survive or not. Everybody has given that self-limiting belief that he may not survive, but I as a mother truly believe in the power of God and in the power of destiny and everything, and I truly believe that this child would survive. And I had tears in my eyes, and I asked this question to myself, that all this while I've been complaining, and all this while I've been complaining that this happened to me, that happened to me, why me, and all. And that day was a day of introspection for me, to count my blessings, because the child was just 6 years old child, and he was running around jumping with joy, and I, a middle-aged woman, was sitting and cribbing about my life, who has lived half of my life, who enjoyed a lot of good things in life. Still I was cribbing. And that day I came back, I sat down, and I wrote down a list of things for which I'm really grateful to God and to my family. Then the list was endless, starting with my supportive husband, to my supportive family, to everyone else around. Because the family whom I met in AIMS, the mother, she came from a very, they stayed at that below poverty line, and they did not have any resources. They have been, staying in AIMS for almost a month. That's when they got a chance to meet a junior resident doctor. So that's the kind of struggle that mother was going through. In spite of that, that mother stood strong by her son, and the child was so joyful and everything, and that changed me completely as a person. So I eventually got into gratitude practices, spirituality, and this gratitude practice completely changed me as a person. And if I have to define what gratitude is all about, it is the greatest emotion which helped me transform all my crises into beautiful opportunities. Because of which today I am here right in front of you, just sharing, about why this is a crucial part of my life. I still have goosebumps while I'm talking to you. I'm so excited talking about it, because I want it to reach out to maximum people, that we should appreciate and acknowledge the things that we have. We human beings are hardwired to pick up negative things from the environment, and we always crib and complain about the things we don't have. But we actually need to change our perspective towards life and think about all those good things that we have in our life. And that is what is gratitude is all about. The most powerful emotion, the mother of all emotions, that can completely change your mindset towards a positive mindset. So that is gratitude is all about for me. Yeah. Wow, that's amazing and really interesting stories that you have shared with our viewers and with me. Thank And you so much. you said very well कि gratitude is the mother of all emotions. कि if we Yes. are grateful, और अगर हम gratitude show करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो automatically वो चीज हमारे पास आती है. If we are बिल्कुल बिल्कुल thankful for what we have, बिल्कुल ऑटोमेटिकली वो चीजें अपने आप ही इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है उन चीजों की. तो ये बहुत बिल्कुल. जरूरी है. बहुत बिल्कुल सही कहा. बिल्कुल सही कहा. मतलब आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है लाइफ के लिए. आप अपने आप को अप्रिशिएट करने लगते हो, आप दुनिया को अप्रिशिएट करने लगते हो, आप हर चीज को अप्रिशिएट करने लगते हो. एक तरह का जैसे कहते हैं कि एक पॉजिटिव इमोशन थ्रू आउट द बॉडी आपकी चलती रहती है. थ्रू आउट द डे आप एनर्जेटिक फील करते हो. सो दैट इज द थिंग. सो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से मैं बाहर निकल के आई हूँ. तो आप समझ सकते हो, मैंने मेडिसिन, मुझे डॉक्टर ने ये स्पेशली कहा था, प्राइवेट डॉक्टर्स जब मैं उनको कंसल्ट करती थी, तो उन्होंने कहा था कि दिस इज the kind of thing which people go through. अगर आप थोड़ी सी भी नेगेटिव हो जाए तो this will get aggravated. So either the person has to undergo a surgery, या फिर आपको जिंदगी
भर आपको दवाई खानी पड़ी, और कई सारे लोग इसको नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, चांसेस भी होते हैं कि दे मे नॉट सर्वाइव। तो आप समझ सकते हो कि ये ग्रेटिट्यूड और ग्रेस प्रैक्टिसेस मेरे लिए कितना जरूरी है, कितना क्रूशियल है मेरे लाइफ में। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ना कोई मेडिसिन ना कुछ, ये ग्रेटिट्यूड अपने में ही एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट था, अपने में एक एंटीडोट है फियर, एंजाइटी सबको दूर करने का। So it itself is a medicine, and it's a natural medicine. So all that I can say. Wow. So Shiba, how Yes. can practice gratitude? Is there any way? Because बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है हम करना चाहते हैं, बट वो चीज एक कंटिन्यूअसली में आ नहीं पाती, कंटिन्यू कर नहीं पाती। तो how we can practice gratitude? Yes. A very valid question you have asked, because see, if I just say that being grateful for things is not enough. वो Right. आपको अपनी एक्शन में लेके आना है, and it has to come straight away from your heart. You got to feel it, and you have to be more than grateful for everything that is there in the life. तो एक होता है कि आपको क्या क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस वे में आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द की। If I say that I practiced gratitude today, and for the next 2 days I'm leaving it because it's a weekend, I want to enjoy with my family, I want to live in that instant gratification, वो तो work नहीं करेगा। आपको कुछ भी करना है, कोई भी कुछ भी आप ले लीजिए। आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्टे अवे फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज। अगर आप रेगुलरली करोगे तो यू विल सी द इम्पैक्ट। सो अगर हम जानते हुए कि वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज विच कैन कीप अस अवे फ्रॉम ऑल दिस डिजीजेस, फिर भी हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में रहना चाहते हैं, सुबह नहीं उठना चाहता, वी डोंट फील लाइक गेटिंग अप, बट दैट डजंट वर्क दैट वे। जो रेगुलरिटी दिखाएंगे, जो कंसिस्टेंट है, वही कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इज द की। एंड मोर ओवर, आप अगर किस टाइम पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल I with my whole family, we follow a family ritual of getting up early in the morning and doing it, and at night before going off to sleep. So morning में suppose आप 7 o'clock को आज कर रहे हो, तो make sure कि आपको कल भी 7 o'clock को करना है। So the time is the key, the time factor, because our brain gets conditioned in such a way that आप अगर regularly करेंगे at least for 20 days, I won't say that 21 days will help you to get into a regular habit, but 21 is the starting point where you get a kickstart to get into the habit of making it a lifelong habit for you. So वो बहुत जरूरी है। Consistency is the key, regularity is the key, coming out of the comfort zone is the key, pushing yourself to some extent initial phase में, क्योंकि आपको करने का मन नहीं करेगा। So किसी भी एक old habit के साथ आप इस new habit को link कर सकते हो। जैसे ब्रश करना हम नहीं भूलते हैं, that has become a lifelong habit, तो उसी के साथ आप लिंक कीजिए कि जैसे मैं ब्रश करूं तो मुझे करना चाहिए। हम तो first thing in the morning हम करते हैं। So this is how you need to do it at the same time, on a daily basis, and make it a lifelong habit. Then you can experience what gratitude is all about. और कैसे करना है, मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि हम 2 प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं। What we do is we get up as a family in the morning and we have this gratitude journal. Diary bolo, आप journal बोलो, कुछ भी बोलो। तो with my daughter, with my husband, we all sit together. आज जो unprecedented challenge जो चल रहा है, जो COVID-19 चल रहा है, इतना unprecedented challenge है, and everybody has got into the habit of complaining that we don't have this, we don't have that. And this is the right time to count our blessings. क्या है हमारे पास? The fact that you are alive is itself a big blessing. The fact that you are with your family today is a big blessing, because there are lives are being lost, thousands of lives being lost every day because of this pandemic. तो ये अपने में ही कितनी बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं। इसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं डायरी में लिखना हर चीज के लिए। जब आप सुबह उठते हो, अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास बिजली नहीं है, अगर आपके पास वो सब सुविधाएं नहीं है, कन्वीनियंस नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को फ्रेशन अप करते सकते हो मॉर्निंग में, तो आप उनके बारे में इमेजिन कीजिए जिनके पास एक टॉयलेट नहीं है, जिनको एक फील्ड में जाना पड़ता है, और लड़कियों के केस में स्पेशली कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू इंश्योर दैट मेन आर नॉट अराउंड,
बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम उस सुविधा के बारे में सोचेंगे तो हम लोग का लाइफ बहुत कन्वीनियंट है, बहुत लग्जरियस लाइफ मैं बोल सकती हूँ आज के हिसाब से देखा जाए तो। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द वाटर, फॉर एवरीथिंग। सो द लिस्ट इज एंडलेस। एटलीस्ट आप 10 थिंग्स आप लिख सकते हैं मॉर्निंग में फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। दैट इज अ मॉर्निंग रिचुअल। एंड बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप, थ्रू आउट द डे आपके साथ सबसे बढ़िया क्या हो गया, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विद यू फॉर विच यू आर ग्रेटफुल, फॉर द people, for the things, to God, whatever it may be, you can write down that. तो बच्चों के लिए, because I'm a parenting coach, so I would really want to reach out to the parents and tell them that this is the most beautiful things which children will enjoy. Don't force the children, but make it a fun activity. बच्चों के लिए कैसे हो सकता है कि डिनर टेबल में, जैसे जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी तो डिनर टेबल में उसको इंजॉयबल बनाने के लिए उसको दौड़ाते थे. शी यूज टू रन अराउंड द डाइनिंग टेबल एंड शी यूज टू जंप अराउंड एंड से दिस थिंग हैपेंड, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टुडे, दिस इज द बेस्ट थिंग हैपेंड टुडे. तो बच्चों के लिए एक fun activity हो जाती है. Correct. So these are many ways you can practice gratitude, and gratitude journal maintain कीजिए, as a fun way में आप enjoy कीजिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ, I am really thankful to God. बस और क्या, life is beautiful. और फिर एक चीज होती है कि जब हम एक ये जर्नल मेंटेन करते हैं, फिर उसको हम बाद में अगर 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसको वापस पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है, देन उस टाइम पे अलग ही वो एक एक्साइटमेंट और एक फीलिंग होती है जो हम अभी मतलब कहते हैं ना, बोल के बयान नहीं कर सकते हैं कि हाँ मैं भी क्या क्या चीजें लिखा करता था या भी क्या क्या चीजें लिखे करते थे. जैसे कि मैं भी, आपने जो रिचुअल की बात कही, तो मैंने भी एक रिचुअल फॉलो करना शुरू किया इस लॉकडाउन में. मतलब इस लॉकडाउन में ले सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड का एक जीता जागता उदाहरण, कि जैसे ये कोरोना वायरस या फिर इस लॉकडाउन का किसी को नहीं पता था. बहुत सारी जॉब्स गई, बहुत सारे लोग कोई कोरोना की वजह से डेथ हुई, बट वी आर स्टिल सेफ. Yes. We are living our life, we are in our house, we are with family. So yes. हमें उस चीज को देखना चाहिए. मैं मानता हूँ कि जॉब्स गई हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, बट वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर हैविंग आवर फ्रेंड्स देयर, वी आर विद आवर फैमिली, कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं, हम अपने घर पे हैं, हम हेल्थी हैं. तो हमें उस चीज के लिए शुक्रिया करना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए. और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी एक रिचुअल फॉलो करना शुरू किया है, तो रात को सोने से पहले जस्ट 2 मिनट का मैं जर्नल लिखता हूँ कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, एंड आई हैव स्टार्ट राइटिंग. अभी कुछ दिन पहले मैं उस जर्नल को पढ़ रहा था, तो मुझे पढ़ के कई बार हंसी भी आ रही थी और कई बार मैं सोच भी रहा था कि यार इतनी सारी चीजें हैं लाइफ में, एंड वी आर रनिंग फॉर कि जो चीजें नहीं है हमारे पास, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, हम भागना शुरू कर देते हैं. लेकिन जो उसके हमारे पीछे पास बहुत अच्छी चीजें हैं, इतनी अच्छी लाइफ है, उसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं. इतनी अच्छी फैमिली है जो हमें सपोर्ट कर रही है इस टाइम में भी, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं, जो हमारे कहते हैं ना कि फैमिली एक फैमिली अलग होता है, लेकिन फ्रेंड्स जोन एक अलग होता है कि फ्रेंड्स से हम बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं, फैमिली में हम वो बातें नहीं कर पाते हैं. तो इतनी सारी चीजें हैं, बट वी आर ग्रेटफुल. तो वो मेरे को पढ़ के उस दिन हंसी भी आ रही थी और मैं सोच भी रहा था कि यार वो मैंने कितनी बड़ी चीज मिस कर रहा था इतने टाइम से. एंड तो वो चीज थोड़ी अच्छी लगी कि हाँ मैंने कुछ अच्छा शुरू किया लिखना. ये एक्चुअली फील कर सकते हैं हम लोग. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग जो आप अभी बात कर रहे हो ना, मुझे वो महसूस हो रहा है कि आप अंदर से वो फील कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ऑल अबाउट. एब्सोल्युटली. हमारी सीरीज का भी आज के एपिसोड का भी नाम है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. Wow, amazing. And this is so close to my heart, that is all the more reason to thank you, because something which is very crucial to me and crucial part of my life, और आपने उस पे डिस्कस करने के लिए मुझे आज इनवाइट किया, तो all the more reason to thank you for that. Welcome. So Jiba, how does gratitude leads to happiness? Oh, there's a strong connection between gratitude and happiness. See, generally people have this tendency to think that success leads to success is everything in life.
But Correct. success is just money, it's not a destination. And if you talk about the ultimate destination, it is nothing but happiness, and happiness is a state of mind. सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, वी आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, but what lies is within us, what lies is within us, and that ultimate happiness lies within our state of mind, कि हम अंदर से कितना खुश है, वो हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, हमारे सक्सेस को डिसाइड करते हैं. व्हाट आई फील इज दैट इफ यू आर हैप्पी यू आर सक्सेसफुल, बट इफ यू आर सक्सेसफुल though it is linked to happiness, that does not necessarily mean that you are happy. Because आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, they are the most successful people in their life. So I have had the opportunity to work with a lot of parents as well, so doing great job and everything in their career and everything, end of the day they are not happy. So if I have to define success and happiness, so I would say happiness is more important, and gratitude plays a very important role in happiness. और किस तरीके से, एक छोटा सा मैं आपको एक मतलब स्टडी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड प्ले करता है एक रोल, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वर्क करता है. Now what happens is that when you start thinking positive, see, gratitude is all about accepting all the good things in life. Okay, so you are appreciating yourself, you are appreciating others, आप थिंग्स को अप्रिशिएट करते हो, पीपल को अप्रिशिएट करते हो, तो आपका क्या होता है, अपने आप ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. फ्रॉम बीइंग अ नेगेटिव पर्सन टू यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव. जब आपकी आउटलुक ही पॉजिटिव हो जाती है तो आपका कंप्लीट थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाता है. और आप ये कंसिस्टेंटली करते हो, मैं बार बार यही बताना चाहती हूँ कि ये आपको कंसिस्टेंटली करना है, कि आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ हो, बच्चे के साथ हो, तो हर एक को, rather than looking out for negative things in other person, you start looking out for positive things. You start looking out for positive things in yourself, rather than being, हम लोग सेल्फ क्रिटिक बहुत होते हैं अपने आप को, कि मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड एट दैट, he is not good enough, she is not good enough. So cribbing, complaining छोड़ के अपने आप में जब पॉजिटिव चीजें देखते हो, आप बाकी लोगों में पॉजिटिव चीजें देखते हो, तो आपकी आउटलुक चेंज हो जाती है, आपका पॉजिटिव आउटलुक चेंज हो जाती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव होने लगते हैं. जब आपका ये थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रेंथन अप हो जाता है, दैट बिकम्स योर बिलीफ. एंड ब्रेन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी. जो आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिलीफ बनने लगता है, एंड the brain believes it to be true. Correct. आज अगर मैं बीमार हूँ और मैं बोलूँ कि I am perfectly healthy, suppose मैं physically बीमार हूँ, but मैं अगर सोचूं कि no, I start thinking that I'm perfectly healthy, I'm perfectly healthy, I use this affirmation over and over and over again. तो जो मेरा thought process है इतना strengthen हो जाता है कि that becomes my belief, because the brain perceives it to be true. और जब brain इसको true मानने लगता है, then comes the big brain playing the big role. It releases the chemical called as the feel good hormones. आपने सुना होगा डोपामिन के बारे में, सेरोटोनिन. So these are all feel good hormones. ये feel good hormones क्या करते हैं, हमारे मूड को uplift करते हैं, हमारे मूड को uplift करते हैं, and we feel happy from within. So that is how gratitude plays an important role in creating that ultimate happiness. See how beautifully, और ये सब कुछ हमारे अंदर चल रहा है और हम सब कुछ बाहर देख रहे हैं. हम everything we are looking out for outside, और जितने भी प्रोसेस, ये सारे नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल रिलीज हो रहा है, वो फील गुड हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, और लोग बाहर की दुनिया में जाते हैं, they get into bad habits. People think going into a discotheque or going into a pub will give you that pleasure, that happiness. Getting into wrong habits like smoking, drinking, friends के साथ घूमना फिरना, उनके साथ उठना बैठना, that will give you instant pleasure. वो instant gratification होता है, वो आपको ultimate happiness नहीं देता. Ultimate happiness आपको अपने अंदर ढूंढना है, कहीं नहीं ढूंढना है. So that is what is a role played by gratitude. That is it. Wow. Amazing, Shiva. You explained very well कि किस तरीके से, हाँ, वो ये होता भी है कि लोग बाहरी दुनिया में या फिर किसी मटेरियलिस्ट थिंग पे अपनी हैप्पीनेस को, मतलब उस पे निर्भर हो जाते हैं कि हाँ, मेरे को ये गाड़ी मिल गई तब मैं खुश हो जाऊंगा, मैं वहां चला गया देन आई विल बी हैप्पी, मैं इस लेवल पे पहुंच गया देन आई विल बी हैप्पी.
जैसे कि स्टूडेंट के लिए होता है कि मैं 12th में टॉप करूंगा तब मुझे बहुत खुशी होगी, दैट विल गिव मी Yes. हैप्पीनेस। Yes. तो लोगों ने Yes. बाहरी दुनिया में खुशी को ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन होता क्या है ना कि सारी चीजें हमारे अंदर ही है। जैसे आपने बहुत बिल्कुल। अच्छा कहा कि हमारे थॉट्स और माइंड को ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, तो मैं भी यही कहता हूँ कि सारी चीजों की शुरुआत ही माइंड से होती है। अगर हम उसको ठीक कर लेते हैं तो वी ऑटोमेटिकली चेंज आवर सेल्फ। क्योंकि कहते हैं ना Absolutely. कि अगर काम जड़ पे किया जाए तो पौधा अपने आप ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल अपने आप ही तो होता है। वही है कि माइंड बिल्कुल। को हम अपने उस तरीके से रिप्रोग्राम कर पाए तो ऑटोमेटिकली हमारी Yes. लाइफ पूरी रिवायर और रिप्रोग्राम हो जाएगी, और फिर हम उस लाइफ को जी पाएंगे जो हम जीना चाहते हैं, एक हैप्पी बिल्कुल। हेल्थी एंड वेल्थी लाइफ। Absolutely, absolutely. You just nailed it and आपने बिल्कुल सही कहा है और यही लाइफ की रियलिटी है। लेकिन इस लाइफ की रियलिटी को रियलाइज करते करते उम्र निकल जाती है और बहुत देर से लोग ये रियलाइज करते हैं। जितनी जल्दी रियलाइज करे उतना ही लाइफ अच्छा होता है। बिल्कुल सही बात Because है। that is what we do. लेकिन कहते हैं ना कि देर आए और दुरुस्त आए, तो जो भी लोग अभी हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी माइंड में थोड़ा सा स्पार्क हुआ हो और वो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करना शुरू करें, एंड जो बाहर की दुनिया में वो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं उसको वो Yes, अपनी लाइफ के अंदर ढूंढे, अपने अंदर ही ढूंढे। जैसे कि अभी yes, इस लॉकडाउन के स्टार्टिंग में एक पोस्टर बहुत चला था, यू कांट गो yes, आउटसाइड, गो इनसाइड। yes. So Absolutely, we can absolutely. And this is meditate, we can do yoga, we can write our thoughts कि हमारे माइंड में yeah, क्या क्या चल रहा है। yeah. तो इस तरीके की चीजें हमारे माइंड को थोड़ा इम्प्रूव करेगी एंड चीजें होती हैं। तो शिवा, इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ग्रेटिट्यूड क्रिएटिविटी में हेल्प करता है? इज ग्रेटिट्यूड Yes. रिलेटेड विद क्रिएटिविटी? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि क्रिएटिविटी से भी इसका कुछ लिंक है, तो यू आर द एक्सपर्ट इन दिस, तो आप ज्यादा बेटर बता पाएंगी। आपने ये क्वेश्चन पूछ के बहुत अच्छा किया बिकॉज आई नो वंडरफुल ऑडियंस है जो भी वीडियो हम देखेंगे। मतलब दे रियली वांट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। ओके, व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू शेयर व्हिच वी रियली डू नॉट नो। और आपने ये क्वेश्चन पूछ के बहुत अच्छा किया बिकॉज as per the survey conducted by World Economic Forum, creativity is one of the 3 most important skills which is required by every single person on this earth. Right. हर एक में क्रिएटिविटी चाहिए। आज आप देख लीजिए, आज का सिनारियो देख लीजिए, बहुत इनोवेटिव एप्स लोग बना रहे हैं, घर बैठे बैठे इनोवेटिव एप्स लोग लेके आ रहे हैं। बच्चे क्रिएटिविटी में क्रिएटिव एप्स डेवलप कर रहे हैं, बच्चे अपनी क्रिएटिव हो रहे हैं, लोग घर बैठे बैठे मास्क बना रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, क्रिएटिव चीजें लेके आ रहे हैं। व्हेन यू आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, और आपकी जब जॉब चली जाती है आपको ऑल्टरनेटिव तो ढूंढनी पड़ेगी कि क्या कर सकते हैं, कौन सा मेरे पास एक ऐसा टैलेंट है जिसको मैं इनोवेटिव तरीके से यूज करके, डिफरेंट तरीके से यूज करके लोगों तक मैं पहुंचा सकता हूँ। एंड सच काइंड ऑफ पीपल सर्वाइव दिस पैंडेमिक, दोज हु आर रेडी टू चेंज and those who are ready to come up with innovative ideas, they survive this kind of pandemic. तो ये उनके लिए है जो चेंज होना चाहते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, वो चेंज दुनिया में ढूंढते हैं, आप बाहर ढूंढते हैं, वो चेंज आपके अंदर है एंड यू हैव टू बी द चेंज you want to see in the world, as is rightly told by beautifully told by Mahatma Gandhi, the father of the nation, that you have to be the change. So ये चेंज अपने आप में कैसे लाएंगे? जब हम अलग हटके सोचने लगेंगे, जब हम अलग हटके हम अपनी लाइफ जीने लगेंगे, when you think differently, when you live differently. So this gratitude has a surprising connection with creativity. And Deepak Chopra, we all know about him, the famous author, and he has beautifully told that there's a surprising connection between this gratitude and creativity, because gratitude opens the door to your power, your wisdom, and the creativity in the universe. That is what was said by Deepak Chopra. And he also says that the best use of imagination, because imagination gives rise to creativity. Okay, imagination means you are full of possibilities, and that gives rise to creativity. So the best use of imagination is creativity, and the worst use of imagination is anxiety. तो अगर आपको एंजाइटी ओवरकम करनी है, then you have to do positive things in life, and the best thing that you can do in life is
practice gratitude. It will help you to overcome your fear, your anxiety, your panic attacks, your depression, and it will help you to stay positive. जब आप अपनी एंजाइटी को दूर करते हो थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, और जब आप पॉजिटिव रहते हो, द पॉजिटिव इमोशंस रन अराउंड इन योर बॉडी, और जब आप पॉजिटिव रहते हो थ्रू आउट द डे, then that enhances your problem solving abilities. A problem solving ability जब आपके increase होते हैं, then you come up with lot of ideas. जब आप lot of ideas के साथ आते हैं, then that one big idea you put it into action. So that is a creativity. So how beautiful it is, the surprising connection between gratitude and creativity. Amazing it is. Correct. Yeah. तभी मैंने कहा कि आप एक्सपर्ट हैं एंड यू आर रिसर्चिंग इन इट, तो आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से ये इसका कनेक्शन है, बिकॉज मुझे भी जानना था कि हाउ इंटरकनेक्टेड इट इज, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही सुना इसके बारे में, ज्यादा नहीं पता था, तो इट्स रियली सरप्राइजिंग। एंड कहते हैं ना कि अगर हम अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं, उसको लिखना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वी कहते हैं अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को। और अगर हम नेगेटिवली सोचते रहे, नेगेटिव ही माइंड में आता रहे, नेगेटिव चीजें पूरे दिन थ्रू आउट द डे हम करते रहते हैं, तो वो पूरा हमारी मतलब एक ऑरा बन जाता है नेगेटिव चीजों का, तो हम नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थिंक डिफरेंट एंड मेक अ डिफरेंस। Absolutely. Helps. Yeah. And I want to share something with you that, I don't claim to be an expert. I am still in the learning process. और काफी रिसर्च के बाद मुझे ये सब पता चला है, बिकॉज जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हो तो आप उसकी डेप्थ में जाते हो, एंड दैट इज द ओनली थिंग आई हैव डन रिसर्च, बिकॉज देयर आर ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हु हैव प्रूव्ड दिस। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया है, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने। रॉबर्ट एमंस, हु इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड आल्सो एन ऑथर ऑफ अ बुक कॉल्ड थैंक्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने उन्होंने एक ग्रुप के साथ एक्सपेरिमेंट करा था। ही डिवाइडेड द ग्रुप इनटू 3 groups, A, B and C, and group A को बोला गया है कि आप daily list of activities लिखो for which you are grateful, and group B has been asked to write off about daily list of things for which makes you feel annoyed and you complain about, and which makes you feel irritated and all. And group C was asked to write daily list of things which they feel is neutral, about neutral events, whatever comes in their mind. And after the study he found out that people who were categorized in group A, जो कि gratitude को follow कर रहे थे, they exhibited a higher level of well-being. They were ultimately happy, they slept better, they exercised more, they were happy. So it is like so amazing. तो बड़े बड़े psychologists ने ये prove करा। और मैं आपको ये भी बता दूं, everything originated in our India, land of ethics, land of वैल्यूज। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में बच्चों को यही सिखाया जाता था, क्रिएटिविटी उसका एक पार्ट था। आप महाभारत देखते हो, रामायण देखते हो, हमने भगवत गीता के बारे में सुना है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में देखा है, तो क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा एजुकेशन का एक पार्ट था। तो ये सब हमारे इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर आप करोगे तो सब कुछ हमारे इसी इंडिया में है, हमें सिर्फ फॉलो करना है, दैट्स इट। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, एवरीथिंग इज देयर, and it's just a source, just spreading the good words, that's it. Absolutely. और कहते हैं ना कि जो हम सोसाइटी में देते हैं, एनवायरनमेंट में देते हैं, यूनिवर्स में देते हैं, वही घूम फिर के हमारे पास आता है। तो इफ वी आर स्प्रेडिंग पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव थिंग, तो रिटर्न में हमारे पास उसी तरीके से आएगी। Absolutely. और इफ वी थैंकफुल कि हमारे पास जो है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। Absolutely. Yeah. Shiva, how does gratitude change people? See, I've taken a number of examples how things change. It absolutely changes the people in changing their mindset altogether. उनके mind shift में एकदम focus में completely change आ जाता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि we are hardwired to pick up negative things from the environment. Right. अगर एक इंसान की life challenges पे ना focus करके उस challenge को वो opportunity में convert करे, so that is a major change.
और जैसे आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देखने लगते हो, फिर आप एक्शन लेते हो, उसकी तरफ आप काम करने लगते हो, rather than giving up. So it helps the people to come out of their challenges and take it as a learning opportunity and convert it into beautiful, turn it into a beautiful action, और action लेके लोग miracles करते हैं. So this is how gratitude change people. That's how it is. एब्सोल्युटली राइट। और कह सकते हैं कि इस पैंडेमिक में जो हमें एक छोटा सा इनिशिएट लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, दैट विल बी अ ग्रेटिट्यूड जर्नल जो हम सबको बनाना चाहिए। और ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप दिन में कुछ करो या ना करो, आपको 5 मिनट अपने 24 आवर्स के निकालने चाहिए और एक ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक ग्रेटिट्यूड डे का ग्रेटिट्यूड, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, जो भी चीजें आपकी लाइफ में है, उसको लिखना चाहिए। बिकॉज वो चीजें हमें हेल्प करती हैं ग्रो करने में, हमें पॉजिटिव रखने में, और हमारे स्किल्स को या क्रिएटिविटी को डेवलप करने में। जैसे कि मैंने कहा, मैंने इस लॉकडाउन की स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया, एंड अभी कुछ दिन पहले मैं सरप्राइज था कि मैंने इतनी सारी चीजें लिखी जिनके बारे में मैं ध्यान भी नहीं देता था, जो सोचता भी नहीं था, उन चीजों को मैंने पता चला कि हाँ यार, ये भी चीज तो है मेरे पास, व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अभी जैसे मैं मानता हूँ कि लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए हैं, बट इफ वी ओनली फोकस ऑन नेगेटिव थिंग कि यार मेरी जॉब चली गई, मेरी अब मैं क्या करूं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक फुल स्टॉप वहां पे लग जाता है। बट कहते हैं ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो वॉकिंग शुरू कर दो, अगर वॉक नहीं कर सकते तो क्रॉल करना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट यू हैव टू कीप मूविंग, कीप मूविंग। Yeah, we have to keep moving. Life has to move on. Correct. I understand कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, बट हम अकेले नहीं हैं. The whole world is suffering. Correct. और ये शायद भगवान हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप अगर प्लान ए काम नहीं कर रहे तो आप प्लान बी वर्क कीजिए, प्लान बी नहीं हुआ तो आप प्लान सी वर्क कीजिए। तो उसके लिए लेकिन हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है। ये एक ऐसा टाइम है जब इजिली हम लोग एंजाइटी में जा सकते हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, स्ट्रेस ये होता है। आई नो मनी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी रीच आउट कीजिए, कम्युनिटी में उनको हेल्प कीजिए, ताकि उनको भी एक मॉरल सपोर्ट मिल जाए और उनको भी आगे बढ़ने का ये कर सकते हैं। तो हम जिस किसी भी वे में किसी ना किसी के हम हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेटिट्यूड एक ऐसा प्रैक्टिस है जो आपको कंपैशनेट बनाते हैं। आज अगर मैं आज मैं अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हुए थे मेरी लाइफ को, उसको मैं थैंक करती हूँ, बिकॉज अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं होते तो मैं एक चेंज पर्सन आज नहीं होती। और आज मतलब एक टाइम था जब मुझे लगता था कि लाइफ has come to an end, it is the end of the road, और आज एक ऐसा दौर आया है जहां मैं खुद खड़ी हुई हूँ और उन सब बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ, उन सब अंडर प्रिविलेज बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ। और ये हमारे लिए एक फैमिली मिशन बन गया है, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी डॉटर के लिए, पूरी फैमिली के लिए एक फैमिली मिशन बन गया है कि हमें स्कूल खोलना है ऐसे बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड आपको देखो कितना कुछ सिखाते हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को डीपन करते हैं, आपको एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। अगर हम सोचे नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से आज मैं ये हूँ, हम एक्सक्यूजेस दें, हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। आई कुड नॉट डू दिस बिकॉज आई सफर्ड फ्रॉम दिस, आई कुड नॉट डू दैट बिकॉज आई सफर्ड फ्रॉम दिस। बट टुडे व्हेन आई लुक बैक, मैं अपनी पेन, जितने भी सफरिंग हुए थे, जितने भी पेन हुए थे, जितना भी हुआ था, उन सबको मैं थैंक करती। इवन आई थैंक माई पेन फॉर व्हाटएवर आई गॉट नो। आज मैं एक चेंज पर्सन नहीं होती, आई माई सेल्फ इज अ लिविंग प्रूफ दैट आई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन from somebody who was working in the corporate world, that 9 to 6 job, and just running the family, me myself, my husband, wahan se nikal ke now I have moved to that we as in with the society, with the community. तो me myself से मैं बाहर निकल के आ चुकी हूँ। Now today I want to contribute to the society, I want to work with underprivileged children. So that is the reason जो भी होगा मेरे कोचिंग सेशन से या मैं जिससे तो वो मेरा, या मेरे बुक से जो सेल्स हो गए, तो वो सब मैंने एक मिशन बना दिया है कि उसमें से जो भी अर्निंग होगा इन बच्चों के लिए कंट्रीब्यूशन जाएगा।
तो मेरी थॉट प्रोसेस ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो आपको किस तरीके से देखो ग्रेटिट्यूड चेंज करता है कि किस तरीके से आपको चेंज करते हैं। तो आपको एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग बनाता है, आपको एक काइंड हार्टेड पर्सन बना देते हैं। आप वहीं से निकल के आते हो जहां आप अपने क्लोज शेल में रहते हो कि मेरी फैमिली, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, उससे भी आप बाहर निकल के आके आप अपने होराइजन को एक्सपैंड करते हो। आप रीच आउट करते हो कम्युनिटी के लिए, जो कि मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए। कम्युनिटी के लिए जो जो सफर कर रहे हैं उन सबकी लाइफ भी अपलिफ्ट करना चाहिए। अपलिफ्ट करना चाहिए। तो बहुत बहुत जरूरी है, उनके मूड को अपलिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी एंजाइटी में जा सकता है। सिचुएशन ऐसा है। तो जो नहीं कर पा रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, आप पैसे के थ्रू उनको हेल्प कर सकते हो, या आप अपने नॉलेज शेयर कर सकते हो, आप एजुकेट कर सकते हो ऐसे बच्चों को। एजुकेशन के लिए आप कुछ कर सकते हो, बच्चों के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही करें, आप अपने स्किल्स शेयर कर सकते हो, आप किसी के साथ मिलकर कुछ कर सकते हो ताकि उनकी लाइफ बेटर हो जाए। कुछ भी आप कर सकते हो। तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर मैं आज ये बोल पा रही हूँ तो मैं आज ये सब कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल पा रही हूँ, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। So I want to, Yeah. yeah. Please. No. I just wanted to share a beautiful quote by Confucius, which says that, I was constantly complaining. I was constantly complaining that I had no shoes until I met a man who Without, had no feet. yeah, I have also. Yeah. और होता यही है ना कि हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, बट दे आर लॉट मोर पीपल कि Yes. उनकी प्रॉब्लम हमसे बड़ी हो सकती है। Absolutely. अगर हम घर जाते हैं, हमें अच्छा मतलब कहते हैं खाना मिल रहा है, बट अगर हमारी फेवरेट सब्जी नहीं बनी या फिर हमारा फेवरेट खाना नहीं बना, हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। बट हम भूल जाते हैं कि यहाँ मतलब सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको वो खाना भी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए जरूरी नहीं है कि, वैसे जनरली जब ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कहते हैं कि हेवी होना चाहिए, ईट लाइक अ किंग, एंड दोपहर को ईट लाइक अ प्रिंस, एंड कहते हैं कि रात को ईट लाइक अ बेगर। बट आई हैव सीन पीपल ईटिंग टू मच एट नाइट एंड ऑल। तो हम कट शॉर्ट कर सकते हैं अपनी ईटिंग हैबिट से भी, थोड़ा कट शॉर्ट करके आप अपना रात का छोड़ दीजिए, उतनी आप किसी के लिए जो नीडी है उनके लिए आप कर सकते हैं। 3 वक्त के खाने के बजाय आप 2 वक्त का खाना खा लो, जो 1 वक्त का खाना है वो किसी के साथ आप शेयर करो। कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि किसी की लाइफ में आप खुशी लेके आओ। सी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज सेज दैट व्हाटएवर यू गिव यू गेट। इफ यू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड you will get hundreds of opportunities to be, where people will thank you. So spread, every goodness in as much a force as of good. absolutely. Yeah, be a force of good, and gratitude teaches that, to be a force of good for others. So Correct. that is the thing. Yeah. अशीफा, मैंने मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि यार हमारे साथ तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, हम उसमें कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। तो यू हैव गिवन अ ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम योर लाइफ, और शेयर योर स्टोरी कि किस तरीके से यू रिकवर्ड फ्रॉम अ वेरी क्रिटिकल डिसीज एंड यू चेंज और ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो यहाँ हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि नई डिफिकल्ट सिचुएशन में भी यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ग्रेटफुल कि उस सिचुएशन में भी आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, व्हाट यू हैव दैट टाइम। तभी आप अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि अगर हम तो नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में भी बहुत चीजें पॉजिटिव होती हैं, हमें उन नेगेटिव चीजों को अवॉइड करके उन पॉजिटिव चीजों की तरफ एक नजर डालनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, व्हाट पॉजिटिव थिंग और व्हाट कैन बी द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस। Absolutely. लाइक जैसे कहते हैं ना, मेरी फ्रेंड थी, उसका पर्स चोरी हो गया। एक दिन वो मार्केट गई तो वो गुम गया, मतलब अब चोरी हो गया या गिर गया पता नहीं। देन वो क्या हुआ कि वो शाम को टेंस थी बहुत, कि या मेरे उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थे और कैश भी था। बट उस टाइम पे मैंने उसको समझाया एंड वी सपोर्टेड हिम। फिर नेक्स्ट डे उसके पास कॉल आया कि आई गॉट योर पर्स, उसमें आपका नंबर था
तो फिर Absolutely. वो नेक्स्ट डे गई इवनिंग में एंड वो लेके आई। बट अगर वो वहां पे उस दिन क्रिप करती कि यार मेरा ये पर्स गिर गया, पैसे थे उसमें, ये सब थे, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, बट शी से शो द पॉजिटिव साइड, कि उसने पॉजिटिव साइड देखा कि हो सकता है कि किसी की जरूरत हो, या हो सकता है मेरे कुछ अच्छा लिखा हो, Absolutely. इट कैन Absolutely. पॉसिबल। बट Yeah. तो ऐसा किया उसने एंड नेक्स्ट डे उसे अपना पर्स वापस मिल गया। तो Yeah. वही है कि सिचुएशन खराब हो सकती है, बट वी Yeah. हैव टू थिंक पॉजिटिव। अब मैं अपना Absolutely. एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज गोइंग समवेयर एंड रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया इन बाइक से, मतलब ज्यादा नहीं लगी थी, थोड़ी बहुत थी। अगर मैं उस टाइम पे ये सोचूं कि यार एक्सीडेंट हो गया, मेरी स्कूटी खराब हो गई या बाइक खराब हो गई, और मैं क्रिप करता रहूं और खाली वहीं पे बैठा रहूं, कुछ ना करूं, तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, मैं वहीं का वहीं रहूंगा। लेकिन बिल्कुल. वो सिचुएशन देखते हुए मैंने उसको स्कूटी उठाई और देन आई कॉल माय फ्रेंड कि यार ये बाइक तो खराब हो गई है एंड तू मेरे को आजा लेने के लिए। तो वो आया, स्कूटी वहीं पास में मैकेनिक था, उसको दी एंड फिर मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया। तो वी हैव टू फाइंड द वेज कि इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से निकलने की वेज क्या हो सकते हैं। और कई बार होता है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा समझ लेते हैं और कि लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, उनको शेयर नहीं करते हैं। वो हम सोचते हैं कि लोग हमारे ऊपर ओपिनियन बनाएंगे, वो हमें कमेंट करेंगे, बट यू हैव टू शेयर योर थिंग्स विद योर क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हैं, या फिर जो आपकी क्लोज कम्युनिटी है उनके साथ आपको हेल्प मांगनी चाहिए। हेल्प मांगने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम हेल्प मांगे और वहां से जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो वो अच्छा चीज आ जाए, वो हेल्प मिल जाए हमें। तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि हमें हेल्प मांगने से डरना नहीं चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम इतनी अच्छी सोसाइटी में अपने नेबर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे घर में रह रहे हैं, हमें खाना मिल रहा है, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक हेल्थी लाइफ चल रही है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। Absolutely, absolutely. It is very, very important. It is very, very important. Whatever you have, told right now, it really makes sense because see, this is a hard fact of life. हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। हर एक इवेंट हमारी लाइफ में होते हैं कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए। और अल्टीमेटली जब आपके साथ एक बहुत मेजर चैलेंज आते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ पर्पस है. And you find the real purpose in life because of that. Today, I cannot imagine that, I thought, writing a book was a distant reality. मतलब मेरे लिए, for a person like me. But life में इतना कुछ हो गया, मेरी daughter ने इतना कुछ challenges face करी as a child. When I got into this, when I thought about became a parent, तो मुझे इतने कुछ experiences होने लगे, तो उन सबको मैं challenges ना लेके उन सबको opportunities लेने लगे, लिखने लगे अपनी experiences, victories लिखने लगे. तो इतना मुझे motivate कर गया कि जब मेरे माइंड में ये बुक लिखने का आइडिया आया, तो मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा बुक सिर्फ और सिर्फ मतलब मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ा था कि मेरे बुक का टाइटल क्या होना चाहिए, बिकॉज वो इतना पैशनेटली आपका लाइफ में आ जाता है कि दैट बिकम्स लाइक द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पेरेंटिंग. सो नथिंग एल्स रादर देन अ ग्रेटिट्यूड पेरेंटिंग. सो दैट इज हाउ यू फाइंड पर्पस इन लाइफ. तो कुछ भी आपके साथ चैलेंजेस आते हैं, दैट देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. एंड यस, सो दैट इज कि लाइफ इज अ लर्निंग. तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, वो देखना हमें कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको एज अपॉर्चुनिटी लेते हैं या फिर उसको एज अ प्रॉब्लम लेते हैं. इस पे मुझे एक संदीप माहेश्वरी का वीडियो याद आ रहा है जो मैंने देखा था, और वो कहते भी हैं कि लाइफ हमें हर रोज अपॉर्चुनिटी देती है, वो हमारे लिए हर रोज अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन वो देखना हमें है कि हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं या फिर उसको प्रॉब्लम या सिचुएशन की तरह लेते हैं. तो अगर हम उसको प्रॉब्लम लेंगे तो हमें प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो या तो हम कहीं पहुंच जाएंगे या फिर कुछ सीख जाएंगे. बिल्कुल, absolutely. You become what you think. Absolutely. Yeah, you become what you believe.
जैसे आपके थॉट प्रोसेस होंगे वैसे ही आपके सामने वो सारे इंसिडेंट्स आ जाएंगे जो आपको उसी थॉट प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में ये करेंगे. तो व्हाई नॉट बी पॉजिटिव, enjoy the life, and spread happiness around. So that is what the whole purpose of life is. Yeah. Absolutely. Yeah. So Shiba, you want to give some tips or tricks for our viewers who are watching us? Well, it's my request to all the wonderful audience out there, all the viewers out there, that whatever happens for a reason. Whatever happens for a purpose. So you got to believe in yourself. Don't give up, because that will turn out to be a great opportunity for you, because that is something which comes in all of our life to test our patience, to test our perseverance, and how we can move ahead. So like for example, this pandemic also, it is a great opportunity for us to do an introspection and to come out of it peacefully, because nothing is permanent in life. And as we all see, this phase shall too pass. So this is a tough phase for all of us. Only thing is that we need to build that resilience. We need to bounce back, and just got to believe in ourselves, and keep a positive state of mind. And what better to do than practicing gratitude, because all that we need at this point in time is to remain positive and spread that positivity around and spread happiness around. So please practice gratitude, enjoy your life, and live life to the fullest. And please spread happiness around, and reach out to people, and reach out to community, and help everybody, because the human life is successful, and we can lead a happy life only when we build relationship, whether with ourselves, or with our own family, or with the people around us. So start building relationship, and the great way to do is to practice gratitude. That will help you to build relationship with everyone in life. And believe you me, you got to have a beautiful life. And wishing all the viewers out there the very best. And we all will come out of this. I'm sure we'll come out of this in a very, very positive manner. And when we will come out of this space, we will all cherish the fact that whatever happens for a reason. And let's all pray for those who are suffering, that they also come out of that situation, and they also lead a very normal life. Thank you so much. So thank you, Shiba. Thank you for giving your time and coming to this series. No, it's been my pleasure. Thank you so much. Super Coach Sonu, you are really super coach. So, I mean, I really want to wish you for all the new endeavors in life, and you are doing an amazing job. I really, appreciate and admire and respect those people who are contributing to the society, and you are doing a great job. And believe you me, you continue your good work, and you will go places. Thank you so much. Thank you, Shiba. So, as I promised that I have some surprise for you. So, this is the time for surprise. So grateful to Super Coach Sonu's Spark Your Mind series, which has given me this space, this platform to share my gratitude list with all of you. So here is my gratitude list. It is an impromptu list, and whatever comes to my mind, I'm just going to blurt it out. So I am grateful for my family, for my health, for my happiness, for the restful sleep that I have, for technology, for the connections that I have, for my talents, for my intelligence, for my voice, for my hair, for my beauty, for my books, for the food that I eat, for the clothes, for the flowers, the trees, my little garden, the earth, the sun, the sky, the stars, and it goes on and on and on. I cannot tell you how excited I am to share my gratitude list with you. I'm going to end this with a jingle, which is a gratitude in different languages. Hope you enjoy it, because I feel that gratitude is a prayer, purpose, practice, and a way of life. It's the only way of life towards happiness. So here is the jingle for you.
Say thank you, मेहरबानी, शुक्रान, धन्यवाद, आभार, नंदी, gratitude, gracias, spasiba, mercy, arigato, thank you, shukriya. Have a blissful life of gratitude. Thank you so much. I am grateful for everything I have. I'm grateful for everything I know. And I'm grateful for everything I am. Yes, it's still beating. And I'm still breathing. Wow. That is what I'm truly, truly grateful for. Thank you, Lord, for making me healthy and happy. And thank you for all my dear friends to support me during these times. Especially this special mission with which we started is coming to an end. And today is the grand finale. I wish you, everyone who is supporting these times in this special cause, to make each and every one remarkable and bring clarity, hope, and happiness. I'm sure that you will be able to achieve lots of amazing thing and success in your life. Thank you so much, and this is what I am grateful for. Hi, I'm grateful for sailing through this pandemic along with my loved ones, praying for divine blessings today and always. Thank you. Hello everyone, I just want to share what I'm grateful for, and honestly, I'm grateful for so much. I'm grateful for my family, I'm grateful for my husband, my daughter, the immediate family, the extended family, my parents. I'm grateful for the amazing set of friends that I have. I call them my powerhouse. They really fuel me. I'm grateful for the body that I have. I felt sick previously some time ago, and I'm very, very thankful that now I'm okay. I'm grateful for the profession that I work in, which gives me an opportunity to make real impact. Honestly, I feel the presence of grace in my life, because a lot of things would otherwise, which we call luck or chance, would not have been possible. So being there at the right time for the right opportunity, that's a lot of grace, and I'm really, really thankful for that. So that's gratitude from me to you. So I'm really grateful for whatever God has given to me, from every breath to whatever wisdom, whatever thought process. I'm thankful for everything that He has given to me, and for such a wonderful friend as well. I'm grateful for everything that I have in my life, such beautiful family and friends, to be in a profession that allows me to help and facilitate people to overcome their challenges in life. What else do I need? I'm grateful for everything. Hey, I'm so grateful that I got to be the part of the show. Thank you, Sonu, for awesome facilitation and having a conversation around self worth. We all understand why it is so important. So thank you everyone for watching this episode. I hope ये episode आपको अच्छा लगा हो, and I hope ये पूरी सीरीज सीजन 1 स्पार्क योर माइंड आपको अच्छी लगी हो. अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है, कोई भी एपिसोड मिस किया है, तो यू कैन गो टू माय पेज एंड वॉच दिस वीडियो और वॉच दिस एपिसोड again and again. So I'll see you in the next season with more interesting topic. But before going that, I want to say just one thing, that the root of joy is gratefulness. तो जो ग्रेटफुलनेस है ना, वो खुशी की, हमारे हैप्पीनेस की, हमारे जॉय की एक रूट है, जड़ है. तो हमें हमेशा जड़ पे ही वर्क करना पड़ता है. अगर हम जड़ पे वर्क करते हैं, जड़ पे काम करते हैं, तो पौधा ऑटोमेटिकली या पेड़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. तो हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए अपनी लाइफ में कि जो भी चीजें हमारे पास हैं. So thank you everyone. I'll meet you in the next season. Till then, bye bye. Take care. You can, and don't forget to like, subscribe, and share this page.
for upcoming episodes and updates. Till then, bye-bye. Please do like, share, and subscribe Super Coach Talks. Please like, share, and subscribe to Super Coach Talks. Thank you. Like, share, and subscribe to Super Coach Talks Spark Your Mind series, and I'm sure that your mind will not just be sparked, your life will be ignited and will take you to new heights of health, wealth, and abundance. All the best. Now, don't forget to like, comment, and subscribe to Super Coach Sonu. Do not forget to like, share, and subscribe. Super Coach Talks. Please like, share, and subscribe to Super Coach Talks. And please like, share, and subscribe to Super Coach Talks. Keep watching Super Coach Talks. Do follow, share, and subscribe.